Hello students, welcome to Apple classes. In the previous lectures, we have finished the two important chapters of science, that is living world and need of classification of microbes, and the second chapter was health and diseases. Those were from the biology part of science. Okay. From today's lecture, we will be starting the chapter from the chemistry part of science. Okay. So it is very short and a very simple chapter from out of your syllabus. The name of the topic is Introduction to Acids and Bases. Okay, let's see the content of the topic. Okay, so these are the content of the chapter. First one is Understanding Acids and Bases. Okay, first of all, let me tell you guys कि ये जो chapter है, it is very basic chapter. It is a kind of basic chapter. Okay. So in the higher classes, you have to see a number of concepts related to acids and bases. So उसके लिए जो बेस होता है और जो फाउंडेशन होता है एसिड एंड बेसिस का, वो आपको स्टैंडर्ड 8 में कंप्लीट करना है इन दिस चैप्टर. ओके, सो द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एसिड्स एंड बेसिस. व्हाट आर एसिड्स, व्हाट आर बेसिस, then what is indicator, then acids. In that we have to deal with the properties of acids and uses of acid. Same with the base, properties and uses of base. Then after that we have to distinguish between acid and bases, like how can we differentiate between acid and bases के उनके chemical properties, उनके physical properties कैसे differ करते हैं, हमें वो देखना है. देन उसके बाद में एक बहुत ही शॉर्ट एंड वेरी कंसाइज पार्ट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. जो एसिड एंड बेसिस के जो रिएक्शंस होते हैं, दोज आर कॉल्ड एज द न्यूट्रलाइजेशन. वी हैव टू सी अ लिटिल मोर अबाउट दोज रिएक्शन. ओके, we have to see a little more about those reactions. Okay, so this is the content of the topic. Okay, so in today's lecture we'll go in detail about acids only. Okay, so acid means, first of all, it is derived from a Latin word acidus. Okay, acidus, it is a Latin word which means sour. Yes, so from the meaning itself we can define acid as the substances which are sour in taste. Okay, so sour means khatta. Okay, so those substances which have sour taste, those are called as the acids. Okay, so हमारे किचन में अगर हम लोग सर्च करेंगे, सो वहाँ पे हमें नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऐसे मिलेंगे, दोज आर sour in taste. Okay, for example, lemon is there, then tamarind is there, then amla is there, also जो oranges हैं. Okay, so ये सब जो vinegar is also there. So these are the examples of acid. Why? Because they have sour taste. Okay, so you might be thinking कि हम लोग acids consume करते हैं हमारी डाइट में, right? But this is true students, because हमारे जो डाइट में हम लोग ऑरेंज खाते हैं या फिर हम लोग आंवला खाते हैं, विनेगर हम हमारे डिशेस में यूज़ करते हैं. सो these contain the chemical, there is a specific chemical जिसकी वजह से उनका जो टेस्ट है वो सार टेस्ट आता है, एक खट्टापन आता है. दैट इज वो जो केमिकल है, दैट इज कॉल्ड एज द एसिड्स. ओके, so if you take example of lemon contain citric acid. Okay, then there is a vinegar contain acetic acid. Then there is a tamarind contain, or also then there are tomatoes are there, tomato contain oxalic acid. Okay, so उनमें एसिड कंपोजिशन जो भी हम लोग इंग्रेडिएंट्स हम लोग डाइट में हम लेते हैं, सो उनमें एक केमिकल होता है जिसकी वजह से हमें एक खट्टापन उसका टेस्ट आता है. ओके, सो दैट केमिकल, वो जो केमिकल होता है जिसकी वजह से हमें उनका टेस्ट खट्टा आता है, दैट इज द acid. Okay, whatever the acid present in the lemon, that because of that acid
there is a sour taste of lemon because of the acid present in the tomatoes. There is a sour taste of tomatoes. I hope you are getting it clearly. Okay, now moving to the classification of acids. Okay, so basically there are two types of acids. First one is a natural acid and the second one is a mineral acids. Okay, so जो natural acids हैं those are from the natural sources. So हमारे अर्थ में natural sources कौन कौन से हैं? First one is a plant and second one is a animal, right? So plant and animal, plant acids and animal acids, these are included under natural acids. Okay, and mineral acids means those acids which are obtained from the minerals, those are called as the mineral acids. So let us see the examples. So plant acids के example हैं हम लोग जो lemon is obtained from plants, then tomato is also obtained from plants, right? So ये लेमन टोमेटो हम जो भी हमारे किचन में हमारी डाइट में हम यूज़ करते हैं दोज आर इंक्लूडेड अंडर प्लांट एसिड्स. फॉर एग्जांपल, lemon contain citric acid, tomato contain oxalic acid, vinegar contain acetic acid. These are the out of plant acid. These are the examples of plant acids. Now moving to the animal acids. Animal acids means those acids which are obtained or which are present in the animals. Okay, इसका best example is formic acid which is present in the bodies of ants. Ant means चूंटी. चूंटी जो होती है ना वो जब हमें उसका जब वो हमें बाइट करती है सो हमको वहाँ पे जो स्वेलिंग होती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ दी जो फॉर्मिक एसिड होता है ना उसके स्टिंग में, हाँ उसकी वजह से हमें स्वेलिंग होता है हमारी स्किन पे. Okay, so this is the example of animal acids. Now moving to the mineral acids means those acids which are obtained from minerals. So if you take इसके best examples are hydrochloric acid that is HCl, sulfuric acid that is H2SO4, nitric acid that is HNO3, phosphoric acid that is H3PO4. Likewise जो मिनरल्स से हमें मिलते हैं दोज आर कॉल्ड एज द मिनरल एसिड्स. ओके, नाउ जो हमने बताया अभी यहाँ पे प्लांट एसिड्स एंड एनिमल एसिड्स, ये दीज आर ऑर्गेनिक एसिड्स. ओके, मीन्स ये हमारी बॉडी में अगर जाते हैं सो दे डू नॉट हार्म अस, राइट, दे आर हार्मलेस. अगर हम उनको हमारी डाइट में इन्वॉल्व करते हैं तो भी हमारी बॉडी में कुछ उसका इफेक्ट नहीं होगा. देन जो मिनरल एसिड्स होते हैं, मिनरल एसिड्स दीज आर हार्मफुल एसिड्स. ओके, जब हमारी स्किन पे हमारे किसी टेबल पे कहीं पे भी आई हैव सीन के हमारे किचन जो टेबल होता है उस पर कहीं पे कुछ भी अगर स्पॉट वगैरह हो जाता है तो उसको हटाने के लिए, उसको साफ़ करने के लिए एसिड हम लोग यूज़ करते हैं. एंड वो एसिड हम थोड़ा सा भी उसके ऊपर रब करने से क्या होता है कि वो पूरा स्पॉट या फिर जो कुछ भी वहाँ पे डर्ट है वो सब कुछ क्लीन हो जाता है. सो इतने ज़्यादा वो करोजिव होते हैं. ओके, सो ऑर्गेनिक एसिड मीन्स नेचुरल एसिड्स जो होते हैं प्लांट एंड एनिमल से प्रोड्यूस होने वाले मिलने वाले वो एसिड्स दे आर हार्मलेस टू अस and they are very diluted form of acids. Okay, diluted means कि एक एसिड है और उसमें अगर हम लोग पानी ऐड करते हैं सो वो डाइल्यूट एसिड बन जाता है. मीन्स उसका जो एक्टिविटी है, उसकी जो एसिडिटी है वो रिड्यूस हो जाती है. सो ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं वो डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ एसिड्स होते हैं एंड मिनरल एसिड्स जो होते हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म होता है उनका. ओके, उनमें बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ विच दे आर कोरोसिव इन नेचर. ओके, सो जो मिनरल एसिड्स हैं हम उनको वाटर उनके एक्वियस सोल्यूशन में जब हम कोई एसिड अगर हम ऐड करेंगे लाइक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इफ यू टेक एग्जांपल, देन उसको वाटर में ऐड करने के बाद में उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा. मीन्स
मिनरल एसिड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू डाइल्यूट एसिड्स। ऑल्सो जो मिनरल एसिड्स होते हैं, अगर हम उनको इनहेल भी अगर करते हैं, उनका जो भी वेपर्स उनसे प्रोड्यूस हो रहे हैं वो वेपर्स भी अगर हम इनहेल करते हैं, सो दे कॉजेज हार्मफुल इफेक्ट इन अवर बॉडी। ओके, सो दिस इज अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एसिड्स कि क्या क्या है एसिड्स। मीन्स इट, फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड दैट इज एसिडस which means sour. So those substances which are having the sour taste are called as the acids. Okay, then we have seen the examples of acids which are present in our kitchen. Okay, so जितने भी हमारे किचन में इंग्रेडिएंट्स हैं विच आर हैविंग द सार टेस्ट, जिनमें एक खटास होती है उसके टेस्ट में, दोज आर कॉल्ड एज द एसिड्स। सो उसके एग्जाम्पल हमने देखे, लेमन में सिट्रिक एसिड इज देयर, देन इन टर्मराइन, then in tomato there is oxalic acid, in orange there is also citric acid, then in vinegar there is acetic acid। ये इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमने देखे हैं। देन उसके बाद में वी हैव सीन दी टाइप्स ऑफ एसिड्स के जो हम हमारे डाइट में यूज़ करते हैं एसिड्स, जो खटास होती है उन इंग्रेडिएंट्स में, those are called as the natural acid, those contain the natural acid. Okay, so natural acids, or they are also called as the organic acids. So they are of two types, plant acids are there and second one is the animal acids. plant acids के example हमने देख लिए, then animal acid का best example है formic acid which is present in the ants। फिर उसके बाद हाँ, then after that नेचुरल एसिड्स जो होते हैं दे आर डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ एसिड्स। ओके, दे आर समवॉट वीकर देन दी, दे आर समवॉट वीकर इन कॉन्सेंट्रेशन। ओके, सो दे आर हार्मलेस टू आवर बॉडी, दैट इज वाई वी यूज देम इन आवर डाइट। देन सेकेंड class of acid is mineral acids. Mineral acid means those are obtained from the mineral sources. Okay, those are the concentrated form of acids. Okay, they are very harmful to us. Then उनका जो कॉन्सेंट्रेशन, उनमें जो एसिड प्रेजेंट होता है वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होता है। देन दैट इज़ वाई वी डोंट यूज़ देम इन आवर डे टू डे लाइफ। बेसिकली जो मिनरल एसिड्स होते हैं दोज आर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स, दे आर वेरी हार्मफुल टू अस। दे आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज और वन कैन से इन मेडिसिन इंडस्ट्रीज। ओके, सो इंडस्ट्रीज में जहाँ पे कुछ प्रोसेसेस करके, वहाँ जहाँ पे बहुत सारे प्रोसेसेस किए जाते हैं, हाँ, सो वहाँ पे मिनरल एसिड यूज़ होते हैं। हमारी डे टू डे लाइफ में वी डोंट यूज़ मिनरल एसिड्स। ओके, सो दिस इज़ अबाउट दी एसिड। आई होप कि आपको जो भी एसिड्स हैं उनके टाइप्स, उसके टाइप्स हैं, उसके एग्जाम्पल हैं, वो समझ में आ गए हैं। यू हैव टू रिमेंबर दोज एसिड्स, देयर नेम। ओके, कि किस इंग्रेडिएंट में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। ओके, यू हैव टू लर्न दैट, यू हैव टू रिमेंबर दैट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आज का पॉइंट अबाउट द एसिड्स। Next point we'll discuss in the next lecture. Till then you have to memorize the ingredient and the acid which is present in that. And yeah, do like, share with your friends, and do subscribe to the channel. And yes, अगर आपको कोई डाउट या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। और थैंक यू सो मच।